Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 7 coming of Europeans to India. So what we have done before this, I'll quickly tell you about that, and before that I'll just say if you have not seen lectures before this, please go through them, and especially the introductory lecture, and now I'll tell you what we have done before this. Basically what we are done with the Mughals. We have not gone into much details of Mughals, but we have done what is enough for our purpose and for the purpose of modern history. Then we are done with all the Indian small state. Then when Mughal empire got weakened, then we did all those Bengal, Bihar, right, Awadh, and all those two small Marathas, Sikhs, Pathans. We are done with all that. Marathas, Sikhs, Pathans, so etc. So we are done with all that, right? Now we have reached the year 1765 with all this. 1765 is there. So before I take you for the history after 1765, let us see that we saw that how Britishers were fighting all these people. हमने अभी तक पढ़ा मुगल्स के बारे में, एंड हमने अभी तक पढ़ा बिहार और मुंबई, ये क्या कहते हैं, मराठास के बारे में, सिख, पठान, सब के बारे में, और ब्रिटिशर इन सब से कैसे लड़ रहे थे आगे आने के लिए. और अब हम पढ़ेंगे, नाउ विल स्टडी हाउ ब्रिटिशर्स वर फाइटिंग अदर्स ऑल्सो. और भी तो लोग थे रेस में. वो लोग कौन कौन थे रेस में? जैसे पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, देन इंग्लिश वर देयर, all these small countries, they were also there in the race. We'll see that how Britishers fought them, right? Now this third lecture we will be covering Portuguese and Dutch. So Portuguese, actually they were the first to come, and the order is first came the Portuguese, then came Dutch. I'll write it for you. You must remember this order. सबसे पहले आए हैं Portuguese, फिर आए Dutch, फिर आए English, and फिर आए French. PDEF, that is the order. And always remember, French were the last to come and first to leave. सबसे पहले इंडिया फ्रेंच एंड में आएंगे और सबसे पहले चले जाएंगे. ठीक है जी. तो now we talk about it. Moving ahead with the lecture. Before I move ahead, I'll give you the background of how the things were, and why was everyone interested in India? What was so special about India? So one of the earliest people who were interested in India were Persians. We will not go into much detail about Persians because that is not the current topic of the day, but I'll tell you something very interesting which Persians gave to India. They gave us Hindustan. Persians ने हमें हिंदुस्तान दिया. What do you mean by this? एक बड़े फेमस ऑथर हुए हैं आर्थर एल्विन बशम, एल बशम. उन्होंने अपनी बुक के पेज 1 पर ये बात लिखी है. Let's read this out. Very very significant thing. The Indians knew this river as Sindhu, and the Persians who found it difficult in pronouncing an initial S called it a Hindu. जो इंडियंस, जो एक यहाँ पर दरिया, जो एक नदी बहती थी, उसको वो सिंधु कहते थे, लेकिन पर्शियंस एस नहीं बोल पाते थे, वो एस को एच बोलते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे. From Persia, the word passed to Greece, where the whole of India became known by the name of the Western River. यानी कि उनके पास ही वर्ड क्या गया? हिंदू. The ancient Indians knew their subcontinent as Jambudvipa, continent of Jambu tree, और भारतवर्षा. भारतवर्ष we still call India. Constitution के अंदर भी call it भारत. The land, after the sons of Bharat, a legendary emperor. And obviously we partially हमने इस नाम को आज adopt किया. भारतवर्षा नहीं कहते, we call it भारत only. And when the Muslims invaded India, Persian name returned in the form of Hindustan. तो जब मुस्लिम, तो बेसिकली आप मुस्लिम जब आए तो उन्होंने हिंदुस्तान का इसलिए नहीं कहा क्योंकि इंडिया में हिंदूज रह रहे थे. दे कॉल्ड इट हिंदुस्तान बिकॉज दे ऑलवेज थॉट दैट सिंधु इज अ हिंदू. सिंधु रिवर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदू करते थे. एंड दोज ऑफ इन इट्स इनहैबिटेंट्स हु फॉलोड द ओल्ड रिलीजन बिकेम नोन एज हिंदूज. जो यहाँ पर लोग ओरिजिनली रह रहे थे उनको वो हिंदूज कहना शुरू कर दिया. The form Hindustan, popular in modern India, is an Indo-Iranian hybrid. It has no linguistic justification. इसका भाषा से किसी भी किस्म का कोई जस्टिस नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ये जस्ट बिगड़ा हुआ शब्द है. सो वी मूव अहेड. ओवरऑल पिक्चर क्या थी यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम देखें? सबसे पहले क्या हुआ? इट ऑल स्टार्टेड विद द डार्क एजेस, राइट? नाउ व्हाट वाज हैपनिंग व्हेन देयर वर डार्क एजेस? डार्क एजेस से क्या मतलब? व्हेन देयर वाज टोटल इग्नोरेंस, and whosoever talked about science was even killed. People were hung from trees and such things. लोगों को मार देते थे कोई लॉजिकल रैशनल बात करता था. डार्क एज था. फिर then came absolute socialist
social structure which was based on feudalism. Now this what was this? This was a relation of feudalism, a relation of a strong and weak on the basis of land and military. यानी कि फ्यूडलिज्म में क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो कमजोर को दबा के रखता है, और वो ताकतवर कौन है, जिसके पास लैंड है या मिलिट्री. आमतौर पे यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऐसी, तो वो मिलिट्री की ही बात होती है. दिस इज नंबर 2, राइट. नाउ नंबर 3, देन व्हाट हैपेंड, देन केम रेनेसा. व्हाट हैपेंड इन रेनेसा? रैशनल थिंकिंग केम ऑन. रेनेसा का मतलब परिवर्तन आया, क्रांति आई. क्या? लोगों के विचारों में, लोगों ने सोचना शुरू किया, लोगों की इंडिविजुअलिटी पर फोकस होना शुरू हो गया. And when came rationality, then came science, and with science came new technologies. And what are those new technologies? Well, like we were having compass, maps, printing machines, such things came up. And with science also came up use of gunpowder in military started. Commerce flourished, और इसकी वजह से कॉमर्स बढ़ गया और ट्रेड बढ़ गया सारी दुनिया के साथ. तो अब क्या हुआ, हालांकि दो इट वाज रिस्की बट देयर वर हाई प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड, सो दे कंटिन्यूड विद इट. एंड फॉर ऑल दिस वेस्टर्न पीपल दे हैड जस्ट वन फोकस, एंड दैट वाज गॉड गोल्ड एंड ग्लोरी. गॉड से क्या मतलब है? क्रिश्चियनिटी. गोल्ड से पैसा, ग्लोरी से मतलब कल्चर. वो इन्हीं पर अपना फोकस कर रहे थे, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी. एंड देन उसके बाद केम मर्चेंट कैपिटलिज्म, राइट. ना इट्स नॉट मर्चेंट कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, कभी भी लेबर की ओनरशिप नहीं होती कैपिटल गुड्स की. वो मार्क्सिस्ट आइडियाज, ये वो सब जो बातें हैं. खैर, we'll cover those ideas when we do world history. Now in all these conditions what happened? यूरोपियन पार्ट ऑफ द ट्रेड, जो यूरोप वाला पार्ट था, अगर पूरा वर्ल्ड ले लें तो उसके अंदर जो यूरोप वाला पार्ट था उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? दैट वाज कंट्रोल्ड बाय इटालियंस, राइट. And Asian part was controlled by Arabians. ये दो बातें याद रखिए. And Turkey later on controlled few routes, and after it won the Asia Minor and Constantinople in 1453. So there were a lot of middlemen involved in this trade, but it still was highly profitable, right. Now Italy was not ready to share trade. Italy, since we know that Italy was the dominant factor in Europe for controlling the trade, it said no, we will not share our trade with anyone. So they were not ready to share trade with Portuguese, Spain and Arabia and in Asia. And Italians also control the Mediterranean Sea. So now what will these people do? Portuguese, Dutch, Spain, all these people, they won't sit at home. So they started finding new areas, new routes where they can do trade. They have heard of stories of India and also about the Spice Island of Indonesia. So what happened, that colonialism, imperialism, all these things came to India through these people, and expansion of the western world started at the cost of the eastern world. ठीक है जी. अब क्या हुआ, क्योंकि लोगों के पास क्या हुआ, डार्क एजेस थी, रेनेसा आया, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी से साइंस आ गई, इससे शिप बन गए, कंपास आ गई, प्रिंटिंग मशीन आ गई, गन पाउडर आ गया, और उनका फोकस क्या था? गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, और नया फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म आ गया. तो इस सारी चीजों, सारे बैकग्राउंड में कंट्रोल दुनिया में यूरोप के अंदर खासतौर पे जो था वो था इटली का. इटली वाले चाहते नहीं थे कि कोई भी और आ गया, तो किसी को वो आने नहीं देते थे. तो उन्होंने क्या किया, जब जो बाकी लोग थे, फिर उन्होंने कुछ नई चीजें ढूंढनी शुरू की, नए रास्ते ढूंढे. उन्होंने बहुत कहानियां सुनी थी इंडिया के बारे में, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया के बारे में. तो फिर इन सारी जगहों पे कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म आ जाता है, क्योंकि जब ये लोग यहां पर आते हैं पैसे कमाने के लिए. बट बिफोर दीज पीपल कम, हाउ विल दीज पीपल कम? ये लोग आएंगे कैसे? या तो जमीन, लैंड से चलकर आएंगे. लैंड से चलकर आएंगे तो बहुत घूम कर आना पड़ेगा, बहुत दूर से आना पड़ेगा. सी का कोई सीधा रास्ता नहीं था. तो क्या होता था, पहले सी पर आते थे, फिर लैंड पर आते थे, फिर सी पर आते थे, फिर लैंड पर आते थे. ऑल्टर कुछ ऐसे बहुत मुश्किल होता था. इट टुक लॉट ऑफ टाइम. तो फिर क्या हुआ, वन डे स्पेन, so all these countries had lot of explorers. They would finance such explorers कि जाओ, go and find new places, new lands. So one of them was, his name was Columbus. Columbus said, I will go and find India. He starts, Columbus India ढूंढने चल पड़ा, और पहुंच गया वो एक नए लैंड पे. जाकर उसे कहता है दिस इज इंडिया, लेकिन ट्रूथ है वो इंडिया पहुंचा ही नहीं था, वो तो गलती से यूएसए पहुंच गया था, अमेरिका. तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ कोलंबस, राइट. ही डिस्कवर्ड अमेरिका बाय मिस्टेक. ही वाज लुकिंग फॉर इंडिया. एंड ऑल्सो नेविगेटर, इसको हम कहते हैं, एडमिरल का टाइटल दिया हमने कोलंबस को. एंड ही वाज द फर्स्ट टू इनिशिएट एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, अगर कोलंबस की हम बात करते हैं. ठीक है जी. सो ये ऐसे सीरीज इसकी चलती है. यू मस्ट रिमेंबर दिस बैकग्राउंड.
quickly I'll tell you, during all this while people were not just coming to India, they were going to some other countries also. तो इस टाइम पर क्या हुआ, जो इतने एक्सप्लोरर थे, चाहे वो डच थे, चाहे पोर्चुगीज थे, चाहे इंग्लिश थे, ये सब इंडिया ही नहीं आए, और भी जगह गए. फॉर जैसे कहाँ गए ये लोग, अफ्रीका के अंदर गए. अब क्या अफ्रीका के अंदर वो क्यों जाते थे? पहले गोल्ड आइवरी के लिए और फिर उसके बाद स्लेव ट्रेड के लिए. दे वेंट टू अफ्रीका इनिशियली फॉर गोल्ड एंड आइवरी, यानी हाथी दांत के लिए, और फिर बाद में वहां स्लेव ट्रेड के लिए चले गए. 16th century, in 16th century, if you remember, I said Italians control the trade in Mediterranean region, but in rest of the world, Italians का Mediterranean पे control था, but in the rest of the world, it was the Spain and Portugal who developed their monopoly in Africa, not the rest of the world, in Africa, and later Dutch, French, British, everyone, all these people control the trade. And after 1650 especially, now this reminds me, this slave trade. Have you seen this movie 12 Years a Slave? इट्स अ गुड वॉच एक्चुअली. यू गेट टू नो कि स्लेव्स की कंडीशन क्या थी, और मतलब बुरे हाल थे स्लेव्स की. यू हैव टू सी दिस कि यूएस के अंदर चीज़ें कैसे वर्क कर रही थी. एंड हो सके तो उसके बाद आप मूवी देखिए लिंकन, उसके अंदर वो भी मूवी इसी के बारे में कि स्लेव्स को कैसे इसको अबॉलिश किया जाता है. पहले 12 Years a Slave, फिर लिंकन मूवी देखिए जब भी टाइम मिले. खैर, फिर आफ्टर 1650 thousands of Africans were sold as slaves in West Indies and in America. अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि ये स्लेव ट्रेड चलता कैसे था. होता क्या था, यूरोप से टू अफ्रीका में गुड्स जाते थे. यू कैन जस्ट फोकस ऑन द मैप ऑन द राइट हैंड साइड. ये है यूरोप, यूरोप से ये चले 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 और यहां से वो गुड्स लेकर अफ्रीका में बेच दिए. एंड फ्रॉम अफ्रीका दे वुड, इन अफ्रीका दे विल ड्रॉप द गुड्स. नाउ शिप्स आर एम्प्टी, दे विल फिल इन द स्लेव्स. And they fill thousands of slaves when there was place only for hundreds. सिर्फ कुछ 100 slaves के लिए जगह होती थी, हजारों भरते थे और 50% भी जिंदा नहीं पहुंचते थे फिर अगली डेस्टिनेशन पे. तो व्हाट वाज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन? क्या होता था, इन स्लेव्स को कहते थे चलो शिप चलाओ, और इनसे वो शिप चलवाते थे. उस टाइम शिप भी हाथ से चलते थे, तो शिप चलवाते थे, पूरा अटलांटिक ओशन पार करके इनको लेकर जाते थे कॉलोनियल प्रोड्यूस के लिए अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में. यहाँ पर ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे, शुगर केन होता था, कॉटन होता था, या फिर माइंस के अंदर ये लोग काम करते थे. और फिर वहां पर क्या होता था, ये स्लेव्स वहीं रह जाते थे, और वहां से क्या होता था, जो गुड्स होते थे तैयार, पिछली क्रॉप जो भी यहाँ गुड्स हैं, दे वर पिक्ड अप एंड दे वर कैरिड टू द यूरोप, और यूरोप में फिर से उनकी मैन्युफैक्चरिंग होके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अफ्रीका में बेचा जाता था. दिस वाज द मूवमेंट ऑफ स्लेव शिप्स, राइट. You see this map, they are written firearms, clothes से सॉल्ट लेके जाते थे, वहां से मिडल अफ्रीका से आते थे, स्लेव्स लाते थे, और वेस्ट इंडीज वगैरह से जाते थे, रम और शुगर लेके जाते थे. एज आई सेड, शुगर केन एंड कॉटन वर पॉपुलर. नाउ बेनिफिट टू वेस्टर्न्स थ्रू स्लेव ट्रेड क्या था? एक तो कमर्शियल सुप्रीमेसी हो गई इंग्लैंड और फ्रांस की, इसलिए करते थे वो, ठीक है जी, कमर्शियल सुप्रीमेसी के लिए वैसी चीजें कर रहे थे. और फिर दूसरी चीज क्या थी, प्रॉफिट्स यूज फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एंड जो ये प्रॉफिट आता था इसका करते क्या थे, अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाते थे इससे, इस प्रॉफिट से, राइट. इस प्रॉफिट से अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला रहे हैं. अब एंड जो इंडिया से हम बाद में पढ़ेंगे प्रॉफिट होता है, उससे भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंडिंग करेंगे. सो वी मूव टू द टॉपिक ऑफ द डे, दैट वाज द बैकग्राउंड. दिस इज पोर्चुगीज एंड इंडिया. Portuguese, if you see the world map and focus on northern Africa and southern part of Europe, and rather southwestern part of Europe, next to Spain you will find a country called Portugal, right. Now we'll move ahead. So who was the main character of Portuguese? He is Vasco da Gama. Why is he important to us? Why are we discussing Portuguese first? Why are not we talking about French or English or Dutch or anyone else? There is a reason. हम अभी तक वास्को ड गामा की, इन्हीं के पोर्चुगीज की बात क्यों की मैंने सबसे पहले? क्यों नहीं मैंने आपसे किसी और की बात की? क्योंकि सबसे पहले इंडिया के अंदर जिसने सीधा रास्ता ढूंढा था सी से, जिसके अंदर लैंड पर बार बार सामान को उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता, ये नहीं कि सी से लैंड पर गए, लैंड से सी पर आए, ऐसा ऐसा करते रहे. तो जो रास्ता सबसे पहले जिसने ढूंढा उसका नाम था वास्को ड गामा, एंड ही केम टू इंडिया इन 1498, and he was the first person to discover all sea trading route from Europe to India, and he did that via Cape of Good Hope. Cape of Good Hope कहाँ है? Cape of Good Hope, if you, I just draw for you अफ्रीका का मैप थोड़ा सा. This is just a rough map of Africa. अब क्या होता है, यहाँ से चला वास्को ड गामा, ऐसे घूमते 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 आया, और he stopped here, right? This is Cape of Good Hope, this point over here. क्योंकि देखो आपको रुकना भी पड़ेगा, इतना लंबा रास्ता है, और फिर यहाँ से वो सीधा इंडिया की तरफ आ जाएगा. दैट इज द वे पाथ ही विल फॉलो, राइट. सो मूविंग अहेड, he was, now when he reached Cape of Good Hope, he was lost because he was looking for a way there.
a Gujarati merchant met him. See, he helped him. His name was Ibn Majid. And he landed, कहाँ पर इंडिया में वो लैंड किया? He landed in Calicut. अब जिसको आप आजकल कोझिकोडे कहते हो केरला में. एंड कब वो लैंड किया? 1498. इफ यू गो देयर कैलिकट में, आई रिमेंबर वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दिस इज द प्लेस वेयर वास्को ड गामा एंटर्ड इंडिया. खैर, तो अब आया, गुड्स लेकर आया, गुड्स कुछ लेके आया साथ में. 60 टाइम्स प्रॉफिट अर्न किया था इसने अपने टोटल जितना इसने पैसा इन्वेस्ट किया था. इतना जबरदस्त था इंडिया का ट्रेड. और अब ऑब्वियसली सनसनी फैल गई. नाउ व्हेन ही एंटर्ड इंडिया, ऑल दोस अरेबियन ट्रेडर दे वर मुस्लिम्स एंड दीस गाइज वर नॉट मुस्लिम, दे वर क्रिश्चियंस और ज्यूज और व्हाटएवर. But then they were non-Muslims. There was now anxiety, first of all because of religion, and second because of trade. They thought ki they will spoil our religion, second they will spoil our trade. So they were not really welcomed here locally. But then there was a local Hindu ruler having the title of Zamorin. He welcomed Vasco da Gama. Now Vasco da Gama was so excited. अब क्या होता है when you get excited, what do you do? आप सब लोगों को जाके बताते हो कि आज मैंने ये देखा वो देखा, है ना. तो अगर आप घर में बाहर हाथी भी देखा होगा ना, तो आप घर में जाके विल टॉक कि हाँ मैंने हाथी देखा. तो वास्को ड गामा ने तो इंडिया देख लिया था. तो व्हाट हैपेंड, ही गोज, अपना दोस्त को फोन करता है. फोन नहीं करता, बस ऐसी चिट्ठी डालता है, लेटर लिखता है. ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड पेड्रो अल्वर्स कब्राल, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्राजील, दैट सर यू हैव टू सी इंडिया, इट्स सो ब्यूटीफुल, यू हैव टू कम हियर. And he was so in love with India, Vasco da Gama. He came to India thrice, and finally he forced Calicut into submission. Right? He went to that end. He's not a good guy otherwise. He just forced Calicut into submission, and he banished all Muslim leaders. सबको बैनिश कर दिया कि भाग जाओ, निकाल दिया हम अपने केरला उस कैलिकट की टेरिटरी से. अब पोर्चुगीज का फिर कंट्रोल कैसे बढ़ा? एक तो आई हैव टोल्ड यू दिस स्टोरी, राइट. पोर्चुगीज का कंट्रोल ऐसे आया कि 1503 में क्या हुआ. दैट वाज 1498, राइट. अब 1503 में देखते हैं, आई विल राइट इट हियर. इससे पहले हमारा चल रहा था 1498. नाउ वी मूव टू 1503. क्या हुआ? फर्स्ट यूरोपियन कॉलोनियल सेटलमेंट ऑफ इंडियन सॉइल एट कोची. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेयर वाज द फर्स्ट फॉरेन कॉलोनियल सेटलमेंट इन इंडिया? यूरोपियन rather, not foreign. It was in Kochi, and Vasco was initially buried here. The Vasco da Gama, he was initially buried in Kochi, and then Kochi, and he was Kochi was the queen of Arabian Sea. So much of there, pearls was there, spices was there, trade, a huge place for trade. So that is why everyone wanted to come to Kochi. Then what happened? Portuguese then, they had their own naval superiority. Navy बड़ी अच्छी थी उनकी. बिकॉज उस टाइम पे ट्रेड सी से हो रहा है. अब एरोप्लेन से तो ट्रेड हो नहीं रहा, सड़क से हो नहीं सकता, एरोप्लेन थे ही नहीं उस टाइम पे, राइट. तो अब इस टाइम पे दे डेवलप टू सिस्टम्स विच हेल्प फैसिलिटेट देयर ट्रेड. प्लीज रिमेंबर दीज टू वर्ड, दीज आर फेटोरियाज एंड कार्टेज सिस्टम. फेटोरियाज में क्या होता है? ये एक ट्रेडिंग पोस्ट होती है. दीज आर अनफोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट ऑन स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन लैंड. लैंड के ऊपर सी के बिल्कुल पास एक पोस्ट बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं लकड़ी की जो अनफोर्टिफाइड होती है. अनफोर्टिफाइड का मतलब है कि उसकी किलेबंदी नहीं की गई होती. तो ये फोर्ट बनाया जाता है. व्हाई दिस फोर्ट? बिकॉज एवरीवन विल एंटर, whoever enters India, let's say through Kochi, he will have to enter through Fetorias. Now if he does so, then he will have to pay something to Portuguese. This way control trade, number one. Number two is Cartage system. Cartage system is a system of passage, right, which Portuguese forced all ships to buy. अगर आपको यहां से निकलना है, हमसे पास लेना पड़ेगा. और पास लेने के सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्टेज सिस्टम. नहीं तो अगर मैं कहता हूं मैं नहीं लेता पास, क्या कर लोगे? कुछ नहीं, आपका शिप्स और गुड्स अपने पास रख लेंगे, आप जाइए घर पे अपने. और इवन मुगल्स हैड टू पे, मुगल्स तक को उनका टैक्स देना पड़ता था यहाँ पे. तो पोर्चुगीज कैसे करते करते बाय द एंड, बाय अराउंड 16th century, right, that's like 1500 onwards, they had lot of control. Portuguese were controlling Ormuz, Muscat, Diu, Goa, right. So all these places more Portuguese were controlling, right. Now battles, let's talk about battles of Portuguese. अब क्या हुआ? 1498 आ गया, हमने पढ़ लिया. then we talked about see क्या हुआ. पहले वास्को ड गामा आ गया 1498. डू यू रिमेंबर द डेट? 20th मई को आया था वो. 1498 के बाद हमने ये पढ़ लिया कि कैसे इन 1503 तक ये अपना पूरा कंट्रोल डेवलप कर लेते हैं यहाँ पे कोची वगैरह में.
अब क्या होता है, अब कंट्रोल कर लिया तो फिर लड़ाइयां भी होंगी, और लड़ाइयां होंगी तो इनके पास शिप्स बहुत हैं, एंड यू कैन सी ये साइड में पोर्चुगीज शिप्स हैं, एंड दे हैड ह्यूज शिप स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाई आई हैव शोन सो मेनी शिप्स ओवर है। तो पोर्चुगीज वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चौल बाय, अब क्या होता है, कौन लड़ेगा, लोकली लड़ेंगे पोर्चुगीज से, कौन लड़ता है पोर्चुगीज से, दुखी तंग कौन होता है, एक तो टर्की वाले दुखी होते हैं, क्यों, टर्की को भी तो होता है हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, इजिप्ट वाले भी दुखी होते हैं, उनका भी तो हमने पोर्चुगीज ने कुछ एरिया ले रखा है, तो टर्की का सुल्तान, इजिप्शियन सुल्तान एंड इंडियन रूलर ऑफ गुजरात हुज नेम इज महमूद बेगारा, यू मस्ट रिमेंबर दीज थ्री पीपल, सुल्तान ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड रूलर ऑफ गुजरात महमूद बेगारा, they fight with Portuguese in battle of Chaul, and Portuguese lose this war because there's so many people fighting. How will Portuguese win? They are new to this area. तो चौल कहां पर है, चौल इज अ प्लेस नियर मुंबई, राइट, 60 किलोमीटर साउथ ऑफ मुंबई। अब 1509 अगले साल ही पोर्चुगीज कहते हैं भाई ये गलत हो गया, they did not like losing, so they fight battle of Diu. Diu is also, this is also known as the second battle of Chaul. Now Portuguese were able to control over maritime trade through high seas. हालांकि लैंड पर फिर भी वो सुप्रीमेसी नहीं कर पाए, लेकिन by this time they were able to control the maritime trade, यानी कि समुद्री जो ट्रेड था उसको, मेरीटाइम, उसको कंट्रोल कर पाए। अब पोर्चुगीज के जो, ये तो वॉर्स हो गई, अब पोर्चुगीज के जो मेन लोग कौन थे, सबसे पहले था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, आपको ये नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, राइट। अब फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज कौन था, ही वाज, इट वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन सब हर एक कोई आएगा तो वो गवर्नर ही बनाएगा, ठीक है जी। जब छोटी छोटी स्टेट बनती हैं, हमारी भी स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, तो वो भी बाहर जाते थे, अपनी स्टेट का गवर्नर बना देते थे। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट तो बनेगा नहीं, वो उनकी अपनी कंट्री में ही होगा, जो भी है एम्परर हेड है उनकी अपनी कंट्री है, पोर्चुगल में बैठा है, तो इंडिया में आए, वाज द फर्स्ट गवर्नर, इट इज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। Almeida was always fighting in India. If you, in the first battle of Chaul, even he lost his son, right? Now he comes in India and he fortifies the Fort Manuel in Cochin and made it a headquarter. Fort Manuel. See, when we say the word fort, it need not always mean that एक fort ही हो. Need not always mean कि वो किला ही हो. It can be much more. जो फोर्ट होता है, फोर्ट एक बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, जो उसकी चार दीवारी करके पत्थर की करते थे ताकि पक्का उसे मजबूत कर दे, ताकि उसके ऊपर हमला ना कर सके, ये है फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी। तो फोर्ट मैनुअल इन कोचीन एंड मेड इट अ हेडक्वार्टर। नाउ मेन पोर्चुगीज पीपल की अगर बात करें, यहाँ पे दूसरा जो आता है इस टाइम पे, इनका नाम है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन दिस पिक्चर एंड द प्रीवियस पिक्चर, वहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज Francisco de Almeida. You can see this picture carefully. Now I'll show you the next picture. This is Alfonso de Albuquerque. तो Alfonso de Albuquerque को आप Alfonso Mango के नाम से याद रख सकते हो। He was a military genius. He was not a mango in his life really. He was, क्योंकि Caesar of the East, इसको टाइटल कैसे मिले हैं, Lion of the Sea, the Portuguese Mars, the Great, the Terrible, and he, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये गोवा को कैप्चर करेगा 1510 में। गोवा वाज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज, इट इज थ्रू हिम दैट गोवा बिकेम अ पोर्चुगीज कॉलोनी, यहां से शुरू होता है पहली बार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर अस एंड द नेम ऑफ द पर्सन आल्सो। सो फ्रॉम whom does he capture it from? He does it from Sultan of Bijapur, right? Now this is in 1510. The Mughals have not even arrived in India. The Portuguese have already arrived in India. Please realize this thing, that even the Mughals were more successful than during that period. Portuguese came in 1510. Advanced the three, अब क्या हुआ, ये थ्री फोल्ड पोर्चुगीज ग्रैंड स्कीम लेकर आता है, जो अल्फोंसो डू एल्बुक्यूर्के होता है। क्या है वो? पहली चीज, इस्लाम को कॉम्बैट करेंगे, क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे, एंड सिक्योरिंग द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पोर्चुगीज एशियन एम्पायर। ठीक है जी। अब ये मुस्लिम्स को परसिक्यूट करते हैं और इंकरेज करते हैं कि जाके ना लोकल से शादी कर लो, उनको भी हमारे रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो। ऑब्वियसली दिस इज द वे दीज पीपल ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो ही इज आल्सो नोन एज द ड्यूक ऑफ गोवा। ही वाज फर्स्ट बरीड इन गोवा, जो एल्बुक्यूर्के है, अल्फोंसो मैंगो है, और फिर क्या हुआ, इसको लेकर उठा के वापस अपनी कंट्री में ले गए। अब आते हैं और लोग। तो अभी तक हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा, एक पढ़ा हमने अल्मेडा, दूसरा हमने पढ़ा मैंगो, Alfonso Mango. Now, third person is Nuno da Cunha. Nuno da Cunha, he was the person of Portuguese slowly developed their empire. Now, what happened that they made their headquarters at Cochin initially, right?
But now he is the person who, do you remember the person who made headquarters at Cochin? I guess it the first one, right? Almeida. He was the first one to come. He'll make a headquarter. So he made the headquarter at Cochin. Now he shifted the headquarter from Cochin to Goa. This Nuno da Cunha. That is why he is important. And he captured Baxi and named it Island of Bassein. Island of Bassein, जिसको एक पोर्चुगीज वर्ड है बसीन, और आजकल हम इसे वसाई कहते हैं, वसाई फ्रॉम, एंड इसलिए ये बहादुर शाह से जो मुस्लिम रूलर ऑफ गुजरात था उससे ये जीता था, राइट। एंड तीसरा जो बंदा आता है इस टाइम है उसका नाम है मार्टिन अफोंसो डी सूजा, एंड दिस पर्सन ही बिकेम द गवर्नर ऑफ पोर्चुगल इन 1542। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज at his time came a very famous Christian saint, and his name was Christian saint Francisco Xavier. He came to Goa, Francisco Xavier, and this first Christian missionary coming to India, he came with Portuguese. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके साथ आया था वो मार्टिन अफोंसो डी सूजा। अब इसको मैरीटाइम से भी याद रख सकते हैं, मैरीटाइम अफोंसो डी सूजा या मार्टिन अफोंसो डी सूजा। एंड इसके जो रेलिक्स हैं, दे आर केप्ट इन सिल्वर कास्केट इन द बॉम जेसिस बेसिलिका। बेसिलिका चर्च को कहते हैं, और बॉम जेसिस, बॉम का मतलब होता है होली, जेसस मतलब जीसस, तो बॉम जीसस या होली जीसस चर्च बनी है। एंड होता क्या है, हर सालों के बाद, जनरली 10 सालों के बाद इसके रेलिक्स को निकाल के दिखाया जाता है गोवा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये चारों नाम आप प्लीज मत भूलेगा। पहला नाम है अल्मेडा, मैं आपको जस्ट याद करवा देता हूं, अल्मेडा। एंड दूसरा नाम है मैंगो। कौन से मैंगोज? अल्फोंसो मैंगोज। अल्फोंसो। सो दैट इज 1 2 Nuno da Cunha 3, एंड थर्ड वन इज मैरीटाइम यानी मार्टिन अफोंसो डी सूजा, दैट इज नंबर 4। just 4 people, and these are the location of Portuguese colonies. You can see that in pink color, that is what we are more concerned with. Here it is. This is the Diu, this is the Daman. You can see these two places, and then this is Goa, right? These are the main colonies which continue to exist in 19th century. Now, general facts about Portuguese. What were their main settlements in India? Daman was there, either Daman and Diu was there, Bombay was there, Cochin was there. So there were other places also called Hooghly. Hooghly is near Calcutta. All of you know the place of Calcutta. And then he had developed Santhom also. Santhom is near Mylapore. Where is Mylapore? This is near Chennai, right? It's rather in Chennai. Santhom this is the same place where Ramakrishna Mutt is also there. Now, what are Portuguese known for? If you think of Portuguese, Spain, what is the one edible thing that comes to mind? And that is pizza. एंड पिज्जा के ऊपर क्या क्या पड़ा होता है? पोटैटो, टमेटो, पाइनएप्पल, चिली, ये चीजें उसके ऊपर होती हैं, ठीक है। वैसे भी ये एक मेडिटेरेनियन कंट्री है, उसी तरफ है, तो वहां पर पाइनएप्पल, चिलीज ये ज्यादा ही होंगी, टमेटो भी अच्छा होगा। तो उसके बाद चिलीज और टबैको होता है वहां पर। प्रिंटिंग प्रेस ये लेकर आए, जो बहुत बड़ी बात थी इंडिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अगर देखा जाए, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर कि कैसे हुआ। तो हम बात कर सकते हैं कि वही तो लेकर आए थे पोर्चुगीज प्रिंटिंग प्रेस, और हमने इसी प्रिंटिंग प्रेस का यूज कर करके हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई हैं। गांधी कुड नॉट हैव बीन गांधी विदाउट प्रिंटिंग प्रेस। नाउ नेम ऑफ द कंपनी क्या था? इनकी कंपनी का नाम था, जैसे इंग्लिश की कंपनी का नाम सबको पता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। इसका मतलब क्या है? द कंपनी ऑफ इंडिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी इनकी कंपनी का नाम है। इनकी मोनोपोली किसके ऊपर थी? स्पाइस और पेपर को लेकर ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। दे डोमिनेटेड इंडियन ओशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने बताया, इनकी नेवल फोर्स अच्छी थी, गन पाउडर था, और एक टाइम ये आ गया था कि अरेबियन लेक को, आपको अरेबियन सी पता है? अरेबियन सी इज ऑन द वेस्ट साइड, नॉट द ईस्ट साइड, नेवर कंफ्यूज इट। मैं आपको दिखा देता हूं, ये इंडिया का मैप है एक छोटा सा। तो अगर ये इंडिया का मैप बनता है, दिस साइड, दिस इज द अरेबियन सी साइड। Now, 1550 onwards, English, Holland, France, they all waged war against Spain and Portuguese monopoly. अब कह रहे हैं ये हटेंगे तो है नहीं, इनसे हटाना ही पड़ेगा। And in the end, in 1667, Dutch agreed कि चलो ठीक है, we'll go to control Indonesia and British can continue to control India, Sri Lanka and Malaya. Now we'll talk about Dutch. So that was Portuguese.
अब पोर्चुगीज आपको पता लगे कहां पर है, अगर आप कर्सर देख सकते हैं, इट्स ओवर हियर, दिस इज पोर्चुगीज, राइट। और अब हम बात करेंगे डच। हुआ डच, नीदरलैंड के जो लोग हैं, तो ये साइड पे छोटी सी कंट्री है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आज एटलस खोलिए और वहां पे यूरोप के मैप में नीदरलैंड को लोकेट करने की कोशिश कीजिए। तो व्हाट वाज दिस कंपनी अबाउट, जैसे ये भी बिल्कुल उसी बैकग्राउंड में आए जैसे पोर्चुगीज आए थे, नए रास्ते, नया ट्रेड, नया पैसा, वही इनका भी फंडा है। तो वो भी इंडिया में वही ढूंढने आए थे जो बाकी आए थे, गॉड, गोल्ड, और गॉड लेकर आए, ग्लोरी लेकर आए, और गोल्ड की सर्च में आए ना। 1602 से लेकर 1759 तक इन्होंने यहां पर अपना बिजनेस चलाया, 157 ईयर्स। यूनाइटेड, इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड। असली नाम की कंपनी का था वीओसी, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप खुद कर सकते हैं। फिर कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द चार्टर इन 1602। ठीक है जी, इनकी गवर्नमेंट ने चार्टर दिया इनको कि जाओ, आपको मैं कंपनी को पावर देता हूं, गो एंड मेक वॉर एंड ट्रीटीज, एक्वायर द टेरिटरीज एंड फोर्टिफाई देम एंड देन डू द कॉमर्स। वॉर करो, ट्रीटी करो, एक्वायर करो, और क्या कहते हैं, कंडक्ट करो कॉमर्स को। अब फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू इशू स्टॉक्स कौन सी थी? वीओसी, एंड दिस वाज द फर्स्ट मेगा कॉर्पोरेशन हैविंग क्वासी गवर्नमेंटल पावर्स। नाउ आई विल टेल यू एवरीथिंग एल्स अबाउट द डच। इनका जो मेन बंदा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जैन ह्यूगेन लिंस कॉटन, यू कैन कॉल इट चोटन ताकि याद रह जाए ना। इसके नाम की वजह से वी कॉल द कंपनी ऑल्सो जैनको। ही इज द रियल फाउंडर ऑफ द डच एम्पायर। ही रोट ए वेरी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डच एम्पायर ऑफ द अर्ली 18 ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 1600 से लेके 1699 तक। अब इसकी बुक का उसका नाम था आइटिनरेरियो। आइटिनरेरियो किसने लिखी थी? लिन चोटन ने। और फिर इसके हेडक्वार्टर कहां थे? इसके हेडक्वार्टर से पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहां पर है? अगर आपको पुलिकट लेक नहीं पता, प्लीज ओपन द एटलस अगेन एंड लोकेट इट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री का मतलब उस टाइम पे ये नहीं था कारखाना। फैक्ट्री इज नॉट अ कारखाना, फैक्ट्री इज अ गोडाउन फ्रॉम वेयर दे वुड ट्रेड। So they made their first factory at Masulipattnam. And where is Masulipattnam? This over here. This is Masulipattnam. It's very near to Visakhapatnam. Now, what were the main settlements of Dutch? These are not the settlements. ये सारे मैप पर ये नहीं सारी डच की सेटलमेंट है। ये तो मेरे को एक मैप मिला था, मैं को मसूलीपट्टनम कुछ जगहें दिखाना चाह रहा था। फिर इसकी जगह कौन सी थी? चिंसुरा था। चिंसुरा इज इन बंगाल। आई डोंट नो यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर नहीं है चिंसुरा। या फिर फोर्ट सेंट डेविड एक दूसरी जगह थी जहां पर इनका कंट्रोल था। अब इनकी मोनोपोली किसके ऊपर थी? जैसे हमने पढ़ा डच की मोनोपोली, सॉरी पोर्चुगीज की मोनोपोली स्पाइसेस के ऊपर थी, आइवरी के ऊपर वो कर रहे थे। आइवरी दैट वाज इन अफ्रीका, दे वर डूइंग इन स्पाइसेस मेनली। तो इनका किसके ऊपर था? इंडिगो, सिल्क, टेक्सटाइल, ओपियम, rice, salt, peter. See, you don't have to remember all this. This is just to give you an idea that how broad their trade was. मैं आपको ये नहीं कह रहा रट्टे मारो कि किसने क्या क्या ट्रेड किया, ऐसे क्वेश्चन रेयरली पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आप एक क्वेश्चन को याद करने के लिए इतना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आराम से चलेंगे। तो इंडियन टेक्सटाइल, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां पर याद रखनी है कि दुनिया भर में इंडियन टेक्सटाइल को डच ने पॉपुलर किया था। यहां से कपड़ा बनता था और उसे सारी दुनिया में फैलाया जाता था। और इस कपड़े इसी वजह से इंडियन गारमेंट को गारमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहने लग गए थे, यानी कि दुनिया भर के लोग हमारे ही कपड़े पहनते थे। ठीक है जी। तो दैट इंडिया इंडियन टेक्सटाइल वाज मेड पॉपुलर अराउंड वर्ल्ड बाय डच एंड इंडियन गारमेंट कम टू बी नोन एज द गारमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो कोरोमंडल था, कोरोमंडल इट वाज कॉल्ड द लेफ्ट आर्म ऑफ मलक्काज। अब पेपर में एक बारी आई एम श्योर ये पेपर में आया था कहीं प्रीलिम में कि लेफ्ट आर्म ऑफ मलक्का क्या है। कोरोमंडल इज द लेफ्ट आर्म ऑफ द मलक्काज एंड दिस वाज सो डिस्क्राइब्ड बाय हेनरिक ब्राउअर। ही वाज अ गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया ऑफ डच टेरिटरीज। यहां पर हेनरिक ब्राउअर का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सुनकर भूल जाइए, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरोमंडल वाज कॉल्ड द लेफ्ट आर्म ऑफ मलक्काज, राइट। Where is Coromandel, right? By the way, this is Coromandel, the eastern side, the southeastern side of India. This where Pulicat is there. This is the Coromandel side. What is the other side? That is Malabar side. This is Coromandel side. Now Coromandel was called the left arm of Malacca's. English now Dutch will also face resistance.
पोर्चुगीज फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल लाइक इजिप्ट से फिर थी, या फिर हमारे लोकल थे, गुजरात का था, लेकिन तो ये है ना, अब यहां पर so many other people have also come to India by the time Dutch came, because Portuguese came very early, 1498. Now these people came little late, right? I told you this is 1602, almost 100 years after that. So and British also came around 1600. So English now they were fighting. English are also coming at the same time. British अंग्रेज भी इसी टाइम पर आ रहे हैं. तो English defeated Dutch in Battle of Bedara. Battle of Bedara, रट्टा मार लो जी चीज का, डच को हराया था इंग्लिश ने, बेदार कर दिया था उनको, बेकार कर दिया था. कहाँ डच को बेकार कर दिया था, कहाँ बेदारा में, नियर हुगली कहाँ है, कलकत्ता में, कलकत्ता के पास, 1759. एंड विद दिस द स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस ऑफ डच पावर इन इंडिया वाज ओवर. हल्की उनकी प्रेजेंस रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो खत्म हो चुके हैं. डच वैसे भी इंडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, अंगूर खट्टे हैं बेसिकली ना, सार ग्रेप्स फॉर डच. Now they start saying no, we were never interested in India, we were more keen on Indonesian islands of Java, Sumatra. You know these islands by the way, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Malacca, New Guinea, Java, do you know these islands? You must remember all these islands by your heart कि इंडोनेशिया के आइलैंड्स के नाम क्या हैं. तो अब क्या हुआ, जो डच थे कहते वी आर मोर कीन ऑन देयर कि ब्रिटिश आप यू प्लीज टेक इंडिया, कि हमें वहीं पर जाते हैं, आप हमें वहां शांति से रहने दो. So they turned out what they do, they Dutch go to Indonesia. वहां पर पोर्चुगीज पहले ही आपको पता घर से 100 साल पहले चले हुए हैं जो पोर्चुगीज हैं, तो डच वहां पर पहले ही बैठे होंगे पोर्चुगीज जाके इंडोनेशिया में, तो डच भी इंडोनेशिया पहुंच जाते हैं. और यहाँ पे पोर्चुगीज पहले से बैठे हैं. डच अब आए और कहते हैं क्या कि जाओ और लड़ेंगे और उनको निकाल भी देंगे माले स्टेट से, इंडोनेशियन आइलैंड से, और इस तरीके से इंडोनेशिया डच के कंट्रोल में आ जाता है. एंड फाइनली कुछ सालों बाद ही, लगभग 20-25 साल बाद ही, जब डच इंडिया में आ गए होते हैं, तो क्या होता है, दे डिफीट ब्रिटिश एम्पायर टू एस्टैब्लिश इन इंडोनेशिया. वैसे भी ब्रिटिश एम्पायर का इंटरेस्ट भी उसी तरफ होता है, इंडिया श्रीलंका की तरफ. सो दैट वाज इट. आई केप्ट द लेक्चर स्मॉल ताकि आपके लिए इजी हो याद करना. आई से कि एक बार रिकॉर्डिंग खत्म होती है, इस लेक्चर को फटाफट दोबारा देखिए ताकि आपको याद हो जाए अभी के अभी. आपको कैसे चीजों को याद करना चाहिए, एक बार अभी देखिए, 24 आवर्स के अंदर लेक्चर को फिर से देखिए, और फिर विद इन 1 वीक आप लेक्चर को फिर से देखिए. राइट, आपको 3 बार लेक्चर को देखना है. आई जस्ट रिपीट इट फॉर यू, 3 बार लेक्चर को. नंबर 1 इज राइट नाउ, नंबर 2 विद इन 24 आवर्स, एंड नंबर 3 आपने इस लेक्चर को कब देखना है, 7 डेज के अंदर. ठीक है जी. मैं आई कैन टेल यू कि यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेक्चर ऑल योर लाइफ अगर आपने ऐसा कर दिया. अब तो दिस वॉज इट इन दिस लेक्चर. अभी लेकिन फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आना खत्म नहीं होता, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे इंग्लिश आए इंडिया में, फ्रेंच इंडिया में आए. एंड वंस दैट इज ओवर, हम हिस्ट्री में आगे चलना शुरू करेंगे. 1765 से हम आगे जाएंगे 1772, और फिर उससे आगे जैसे लॉर्ड क्लाइव आ जाएंगे, और उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा गवर्नर जनरल, कैसे गवर्नर जनरलशिप बनती है, जो असली ब्रिटिश हिस्ट्री है वो उस लेक्चर से शुरू हो जाएगी. अगला लेक्चर होगा इंग्लिश और फ्रेंच के बारे में. अगला लेक्चर के बिना आप सारी अगली हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे. हिस्ट्री को एक कहानी की तरह सोचिए, एक प्ले की तरह सोचिए. अगर पिछला एपिसोड ना देखा हो तो अगला एपिसोड देखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी. यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट मच द नेक्स्ट एपिसोड इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट एपिसोड. और आपने अगर पिछले लेक्चर में कोई कमी रह गई है, थोड़ा घबराइए मत. राइट, वेट फॉर इट. अगले लेक्चर में हर चीज कवर होगी. आई एम taking care of everything. That's all. If you like our lecture, please subscribe to our channel, and please see, I'm not charging you money for these. You can do me one favor, right? You go and share this one lecture on your Facebook profile, share it with your friends at least once. इतना तो आप कर ही सकते हैं for me. So that's